Hello students, I hope all of you are fine, and today again I am back with the next video. So this video is in continuity to the previous video on chapter number 5, that is the fundamental unit of life. तो पिछली वीडियोस में हमने कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कशन किया था about the nucleus, about the cytoplasm and other cell organelles like Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. So same next cell organelle is mitochondria. So mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. It is known as the powerhouse of the cell means I think इससे हमें समझ आ रहा है कि इसका सेल के अंदर फंक्शन क्या है. It is known as powerhouse, that means it provide energy to the cell. It provide energy to the cell. This is very clear from the heading itself. So now the second thing is about the structure of the mitochondria. ये जो mitochondria होता है देखने में कैसा होता है, इसका structure कैसा है? So just have a look. If we talk about the mitochondria, it is double layer. It is double layer. Double layer means इसकी दो layers होंगी. दो layers में क्या होता है कि outer layer is highly porous. Outer layer is highly porous. Porous means उस पे बहुत ज्यादा pores यानी कि holes present होंगे. The outer layer of the mitochondria is highly porous. तो ऊपर की लेयर highly porous है. And if we talk about the inner structure, अंदर से देखें, the inner layer is deeply folded. The inner layer of the mitochondria is deeply folded. इस तरह से जो inner membrane है that is deeply folded, the outer membrane is highly porous. And these folds are known as cristae. These folds are known as cristae. जितने ज्यादा क्रिस्टे होंगे उतना एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है because they support the aerobic respiration process. So what is mitochondria? What is its main function is clear. And next is about the structure of mitochondria. It is double layer. Outer layer is highly porous. Inner layer is deeply folded. And these folds are also known as cristae. Now next come to the function of the mitochondria. अगर हम mitochondria की बात कर रहे हैं तो उसका function क्या है? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, it is known as the powerhouse of the cell. It means it provide energy to the cell. इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. दिस इज क्लियर. जस्ट हैव अ लुक. इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल. इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड कैसे करता है? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर. इट्स वेरी सिंपल. देख लेंगे हम, यहाँ पे लिखा होगा पावर हाउस ऑफ द सेल, उससे समझ आ जाए कि एनर्जी प्रोवाइड करता है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली हाउ दिस प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल. इस सेल को एनर्जी कहाँ से देता है? बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी की फैक्ट्री है सेल के अंदर. Because we know that energy can neither be created nor be destroyed. Energy को पैदा तो नहीं कर सकता है. So then how it is able to provide energy to the cell? This is the important thing to understand here. As we know that we eat food. हम खाना खाते हैं, हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, हम ब्रीथ भी करते हैं. So both the processes are done just to obtain energy. एनर्जी लेने के लिए हम खाना खाते हैं, एनर्जी के लिए हम ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन करते हैं. Both the food after digestion and the oxygen after breathing process is completed. जो हम खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है. एंड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन टू द सेल विद द हेल्प ऑफ ब्लड. ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. सेल में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि फूड की ब्रेकडाउन होती है. It combines with oxygen to release energy, and this is known as aerobic respiration. Although it is little bit complex process, we will study a bit about this topic in class 10th also. Otherwise, it is given in higher classes. तो aerobic respiration जो होती है that take place in the mitochondria. जब respiration means जो हम खाना खाते हैं उससे जो energy मिलती है, that process is completed in the mitochondria. That is why we say that it is powerhouse of the cell, because नेचुरली अगर फूड माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ब्रेक होगा तो एनर्जी भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होगी. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. अनदर थिंग दैट इज जस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम. इसमें इसके पास अपना डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं. सो लेट मी क्लियर यू दैट DNA is required for the protein synthesis. DNA will decide, DNA ही decide करेगा कि प्रोटीन कैसे बनेंगे. Ribosome will help in the protein synthesis. DNA गाइड करता है कैसा प्रोटीन बनाना है.
राइबोसोम एक्चुअली प्रोटीन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स, सो इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एज इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसके पास डीएनए भी है जिसमें इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन किस तरह के बनाने, और इसके पास राइबोसोम भी है जो एक्चुअली प्रोटीन बनाते हैं। सो दैट इज व्हाई दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग देयर ओन प्रोटीन। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। सो द एंटायर माइटोकॉन्ड्रिया इज क्लियर। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, ऑल्दो इट विल नॉट बी प्रेजेंट इन सच अ ह्यूज साइज। तो ये अगर हम बात करें, दिस इज द न्यूक्लियस, so here will be the mitochondria. Okay, so next cell organelle. Now if we talk about the next cell organelle, that is plastids. Plastid are the cell organelles which are present only in the plant cell. प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल सेल बिकॉज एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड आर नॉट रिक्वायर्ड, इनकी जरूरत ही नहीं है। दैट इज व्हाई दीज विल नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल सेल, दीज विल बी प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। ये हमें सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेंगे। सो नाउ वी टॉक अबाउट द प्लास्टिड, अबाउट देयर टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लास्टिड का काम क्या है, टू स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं, कुछ और मटेरियल को भी स्टोर करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स को भी स्टोर करते हैं। सो मेनली द फंक्शन ऑफ द प्लास्टिड इज टू स्टोर डिफरेंट कंपोनेंट्स। प्लास्टिड आर ऑफ टू टाइप, दैट इज क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स, ये जो वर्ड क्रोमो है, क्रोमो का मीनिंग होता है कलरफुल, कलर। So chromoplasts are the plastid which are brightly colored, and leucoplasts, they are either white or colorless. Either they are white or they are colorless. या तो white होंगे या इनका कोई कलर नहीं होगा। But if we talk about the chromoplast, they are brightly colored. ये brightly colored होते हैं। इनका कलर डिपेंड करता है कि इनमें कौन सा पिगमेंट स्टोर्ड है। व्हाई दीज आर कलरफुल, बिकॉज दे स्टोर पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं, कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं, कलरफुल कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ द प्लांट। दे आर स्टोर्ड इनसाइड द क्रोमोप्लास्ट, दैट इज व्हाई दीज आर कलरफुल। और इनमें ऐसा क्या होता है कि कलरफुल नहीं होते, तो इनका काम क्या है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को स्टोर करते हैं। These do not have any specific color, that is why the leucoplasts are white or colorless. Opposite to it, जो chromoplast है, they store the colorful pigment, that is why these are brightly colored. ये डिपेंड करता है जिस तरह का, जिस कलर का पिगमेंट होगा उस कलर के हमें क्रोमोप्लास्ट नजर आएंगे। I think this one is clear. Plastid are present in plant cell. There are two types, chromoplast and leucoplast. Chromoplast are brightly colored, colorful होते हैं। Leucoplast are white or colorless. ये brightly colored क्यों होते हैं? Because they store pigments, red color का, green color का, blue color का। These are white or colorless because they store carbohydrates, proteins and fats. So in our syllabus, we need to learn about one specific kind of chromoplast. एक क्रोमोप्लास्ट को हम स्पेशली पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। अभी अगर हम पिगमेंट्स की बात करते हैं कि क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या है, कलरिंग कंपोनेंट, कलरफुल कंपोनेंट्स। जैसे कि प्लांट्स दे अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जिस सेल ऑर्गेनली में, जिस प्लास्टिड में स्टोर होता है, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर के होंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट विल बी डेफिनेटली ऑफ ग्रीन कलर बिकॉज इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। इसके अलावा और कलर्स के भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि ज़ेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। तो उनके अकॉर्डिंग ही जिस तरह का पिगमेंट स्टोर होगा किसी क्रोमोप्लास्ट में, उसके अकॉर्डिंग उसका कलर होता है। सो क्लोरोप्लास्ट दे विल बी ऑफ ग्रीन कलर एज they store
green pigment chlorophyll. Now the important thing is about the structure of the chloroplast. उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का काम क्या है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. ये प्लांट सारे ग्रीन ही क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल. व्हाई द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट? बिकॉज ये जो क्लोरोफिल है इट हेल्प टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, जिसकी हेल्प से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं. दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंस, वेरी हाई इंपॉर्टेंस इन द प्लांट्स, बिकॉज ये जो क्लोरोफिल है इट हेल्प टू एब्जॉर्ब द सनलाइट. सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं. So this is the function of chlorophyll, the green pigment. Now next is the structure of the chloroplast. Chloroplast का structure कैसा होता है? It is not given in our NCERT book, so understand it very carefully. ये जो chloroplast का structure है पूरा, इसमें छोटे छोटे structures होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? Thylakoids. These are thylakoids. Thylakoid में होता है chlorophyll. Thylakoids they are arranged in a pile. Pile means one over the other. इस पूरे हम पाइल को हम क्या बोलते हैं? This is known as grana. A pile of thylakoid. जब thylakoid एक के ऊपर एक अरेंज होता है पूरा ग्रुप को हम बोलते हैं grana. There are many grana inside the chloroplast. एक chloroplast में बहुत सारे grana होते हैं जो आपस में linked होते हैं. They are linked with each other with the help of stroma lamella. Stroma lamella act like a bridge, act like a linkage between two grana. ये जो काफी सारे grana आपस से जुड़े होते हैं, they are linked with each other with the help of stroma lamella. और लास्ट में जो कंपोनेंट बचता है that is the fluid, that is the liquid, जो thylakoid क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है पूरे के पूरे. This is known as stroma. So these are all the components of the chloroplast. So what we have discussed so far, thylakoids जिनमें chlorophyll है, thylakoids are arranged in a pile that is known as grana. Many grana are there inside the chloroplast, and these grana are combined with each other with the help of stroma lamella. This was all about the structure of the chloroplast. Chloroplast क्या है? It is a type of chromoplast only, colorful plastid है, and it particularly store the green pigment chlorophyll, जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं. I think all the points that we have discussed so far are clear to all of you. But still, if you have any kind of confusion, just write in the comment section. I will try to clear your doubt immediately. So thank you so much and keep